So what do you understand by the OSCE and OSPE? We'll discuss in last lecture, no? यस मैम, मैम पर्पस तक हो गया। But I'm asking what's the mean of the OSCE and OSPE? What is OSCE? Saloni? मैम ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जाम। Objective structure clinical examination. And what is OSCE? OSPE? मैम क्लिनिकल ऑब्जर्व प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। No. What is OSPE? OSPE. मैम मैम क्लिनिकल ऑब्जर्व स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। O for the O stand for observation. S stand for structure. P stand for practical. प्रैक्टिकल। Exactly. And the examination, right? So where we have done OSPE and OSCE. Kanupriya. Where we will plan for OSCE and where we will plan for OSCE. Ujala. यस मैम। OSCE हम कहाँ प्लान करेंगे? OSCE हम कहाँ प्लान करेंगे? मैम ऑस्की तो हम हॉस्पिटल में करेंगे एंड जो ऑस्पी होगा वो मतलब लैब वगैरह में कर सकते हैं। Exactly. क्लिनिकल का मीनिंग क्या होता है? मैंने लास्ट टाइम को बताया था. व्हाट्स द मीन ऑफ क्लिनिकल? मैम बेड साइड। Exactly. Clinical means at the bedside and practical means practical का meaning क्या है? मैम एज अ डेमोन्स्ट्रेशन इन लैब। In a lab. Okay. So in the last lecture, मैम प्रैक्टिकल वो है जो डमी पर करते हैं। यस मैम। practical वो है जो practical मैम क्या? we will done in a laboratory side. जो लैब में हम मैम करते हैं. ओके. तो किस चीज के यस करते हैं हम लैब में वर्क? हम लैब में आपको डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं. क्यों देते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ यस मैम। OSCE? मैम जो हमने थ्योरी में सीखा है मतलब उसे हम कैसे मतलब अप्लाई कर सकते हैं रियल लाइफ में, तो उसी को मतलब पहले उसे सीखा जाता है फिर उसके बाद ही मतलब उसे क्लिनिकल में यूज किया जाता है। That means what kind of the complication you are facing at the time of clinical side, you have to clear all these doubts whenever you have to done any kind of procedure on laboratory side, right? So in the last lecture, we will discuss about the nursing. Nursing is a independent practice. Okay, the nursing education, teaching, learning, objective. So teaching, learning, objective, they are the three domains according to the Bloom taxonomy in 1964. That is a cognitive, affective, and psychomotor. And these cognitive, affective, and psychomotor, we will practice inside of laboratory as well as the clinical side. Okay. Now these three things, education objective, clinical nursing practice, and the nursing process, these three things are interrelated. I already explained you what is the clinical. Clinical means at the bedside, whatever you're providing any kind of the care, okay, if you are the following your standard and providing good quality of care to the patient, that is by the clinical side. In a practical side, practical means when we have practiced your three scale of domains, okay,
Practical means the laboratory. In the laboratory, whatever you are doing, okay, whatever the procedure you are done, demonstrating, these comes under the practical side. Then the nursing care skill evaluation. So how we will evaluate the nursing care? The expert coordination, whenever we have to evaluate the nursing care, the expert coordination of the heart, head and hand. Okay, heart means the feeling of the people. The head means the clinical decision, but you are making the decision at the time of your clinical learning, and the hand according to your head, your hand are performing. Okay. Now the history, already we'll learn about the history of OSCE, the principle of OSCE and OSPE. It is very important before planning the OSCE. मैम वॉइस ब्रेक हो should रही know है. that is what, why, where, when and how. ठीक है, आपको क्या प्लानिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कब करोगे, कैसे करोगे, कहाँ करोगे. ठीक है, यू शुड नो. Objective, structure, clinical. It's a OSCE. Clinical means in at the bedside. So already we will learn about the OSCE. Purpose finish हो गए थे हम लोगों के. Yes, ma'am. Of OSCE. Okay. Now, why? What is the need of OSCE and OSPE? To reduce the usual method of evaluation of student clinical competency, as it has a many drawbacks. Okay, तो यूजुअली जो हम मेथड यूज करते हैं इवेलुएशन का क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी को इवेलुएट करने के लिए, हर एक स्टूडेंट की क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी को इवेलुएट करने के लिए हम उसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन लेते हैं. उसके क्या होते हैं, बहुत से ड्रॉबैक्स होते हैं जिसकी वजह से हम OSCE और OSPE यूज करते हैं. एज आई टोल्ड यू बिफोर कि OSPE और OSPE का पर्पस क्या होता है, सो दैट इन इक्वल लेवल आपको जितना भी स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल 100 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है, हम सेम लेवल पे उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल चेक करें. ईच पर्सन हैविंग अ इक्वल चांस और इक्वल काइंड ऑफ द टास्क. ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को डिफरेंट टास्क नहीं मिलता, सेम टास्क मिलता है, बस अपनी उसे कॉम्पिटेंसी यहाँ पे प्रूव करना होता है. ओके, बट यूजुअली जो हम इवेलुएशन लेते हैं, क्लिनिकल इवेलुएशन लेते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट 10 या सेकंड 10 या थर्ड 10. ठीक है, तो फर्स्ट 10 के पास डिफरेंट प्रोसीजर्स आते हैं, सेकंड 10 के पास डिफरेंट प्रोसीजर आते हैं, थर्ड 10 के पास डिफरेंट प्रोसीजर है. हर एक प्रोसीजर का जो क्राइटेरिया है दैट इज डिफरेंट, टाइम ड्यूरेशन क्या है डिफरेंट है. तो हम किसी स्टूडेंट को तो बहुत अच्छे प्रोसीजर मिलते हैं, किसी स्टूडेंट को बहुत इजी प्रोसीजर्स मिलते हैं, किसी को बहुत टफ मिलते हैं, किसी को 2 और 3 प्रोसीजर्स मिलते हैं, किसी को सिर्फ 1 प्रोसीजर्स मिलते हैं. ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन द टाइमिंग ऑल्सो, because only one person are evaluating the whole thing. That's why हम क्या करते हैं, OSCE and OSPE यूज करते हैं. तो जो हम पहले मेथड यूज करते थे उसके ड्रॉबैक्स क्या है. The first is 50 to 20 students are examined at a time and can't observe individual perform. अब 50 to 20 स्टूडेंट क्या करते हैं, वन टाइम पे ही उनका एग्जामिनेशन किया जाता है. इससे क्या होता है, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे. All the domains of the learning objective can't be evaluated in such a short time. So because timing is very short, so all the domains of learning objective, okay, they will not evaluate it because of a very short time. The evaluator can't evaluate it, the whether the student are, you means, learn and utilizing their 3 domains whenever they are performing any kind of the procedure, because the evaluator also having a very less time. The one evaluator observing the whole the student. Okay, the subjectivity in evaluations, and more subjectivity in evaluation rather than the objectivity. Okay,
So that's why we are plan the OSCE and OSPE. When हमें OSCE और OSPE कब करना चाहिए? Can be conducted as a formative evaluation is a part throughout the year periodic sessional examination. ठीक है, तो जब हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर जो हम पीरियोडिक सेशनल एग्जामिनेशन कर रहे थे उसके लिए हम ऑस्पी या ऑस्की यूज कर सकते हैं. जैसे आपके सेशनल एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए हम ऑस्की एंड ऑस्पी यूज कर सकते हैं. Also, it can be carried out at the end of the academic year a summative evaluation. Summative means sum means the whole. ठीक है, तो एट द एंड जो सबके फाइनल एग्जामिनेशन है, फाइनल एग्जामिनेशन के क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए भी हम ऑस्के एंड ऑस्पी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टू evaluate the competency of the student, each individual. Okay, before scheduling the OSCE and OSPE, it must be assured that the student have attained all the domains of learning objective, whether it is a part or whole. ठीक है, so whenever we are scheduling the OSPE and OSCE, चाहे हम OSPE शेड्यूल कर रहे हैं या OSCE शेड्यूल कर रहे हैं, you should be ensure means the evaluator should be ensure that the student have attained all the domains of learning objective. जो 3 domains है learning objective के, उन्होंने वो all domains means they each individual they attend all the domains. अब all the domains कैसे attend करेंगे वो, जब हम क्या करेंगे, each individual को equal chance देंगे, सेम सिनेरियो में उन्हें एक्सपोज करवाएंगे, सेम सिनेरियो देंगे, सेम टास्क देंगे उनको इवैल्यूएशन का, सो दैट कि वो अपना जो क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी है वो वहाँ पे प्रूव कर सकें. ठीक है, वेदर इट इज अ पार्ट और होल, चाहे वो एक पर्टिकुलर पार्ट में आपने ऑर्गेनाइज किया है, चाहे वो होल ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन जो भी आप ऑस्पी और ऑस्की के लिए स्टेशन ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है, मैंने आपको बताया था ऑस्की और ऑस्पी के लिए करते हैं हम स्टेशन बनाते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, डिपेंड ऑन द आपने कितने क्राइटेरिया रखे हुए हैं. तो वो जो क्राइटेरिया आपने बनाए हैं वो ऐसे होने चाहिए सो दैट कि जो स्टूडेंट है वो क्या कर सके, अटेंड कर सके ऑल द डोमेन, मीन्स इवेल्युएटर जो ईच आपका स्टेशन है उसके थ्रू स्टूडेंट के 3 डोमेन को इवेल्युएट कर सके. ठीक है, एंड स्टूडेंट आल्सो यूटिलाइजिंग देयर मीन्स स्टूडेंट आल्सो practice their 3 domains, okay, during their clinical examination. अब वो कब करेंगे, जब उन्हें इस तरीके का टास्क मिलेगा. तो आप चाहे एक पार्ट में उसे कंप्लीट करते हो, चाहे होल आपने जो सिनेरियो बनाया है उसमें कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन उसमें ये 3 डोमेन्स रिलेटेड प्रोसीजर्स होने चाहिए. ठीक है, now the where. So where we organize the OSCE and OSPE. OSCE is conducted actual situation. Actual situation means in a clinical site where the living human being need the competent health care in a hospital or the community. Whether you having a community examination, whether you having a fundamental examination or the MSN examinations, OSCE we will organize in a community and the hospital levels, right? OSPE, P means practical. So it's conducted typically in lab where the learning activity are related to the healthcare, either the diagnostic, the urine test, supportive, therapeutic, diet planning, like that we have to organize OSPE in a laboratory site. ठीक है, जैसे क्लिनिकल में इसने कहा है where you are providing care to the patient at the bedside, you are providing the care and you are performing any kind of the procedure and this is your task, like stimulation है, nebulization है या वाइटल साइंस है. ठीक है, आपको बात देना है, वट एवर द प्रोसेस जो आप लिविंग ह्यूमन बीइंग में कर रहे हो वो ऑस्की है. ऑस्पी यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूरिन टेस्ट किया लेबोरेटरी में या फिर थेराप्यूटिक डाइट प्लानिंग करी है. ठीक है, मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ाया था थेराप्यूटिक डाइट प्लानिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटिक के लिए डाइट प्लान बनाना है आपको या फिर आपको हाइपरटेंशन के लिए बनाना है, तो दिस काइंड ऑफ टास्क हम देते हैं लेबोरेटरी साइड में. ओके, OSCE and OSPE.
are usually combined as a holistic health care, involve all the aspects of the human health. Okay, so OSCE OSCE क्या है? As a usually they are the combined as a holistic health care, involve all the aspect of the human health. So related to जितने भी aspect होते हैं human health से related, वो सारे क्या होते हैं OSCE OSCE में क्या होते हैं? combined होते हैं, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड जितने भी फैक्टर हैं हम OSCE OSCE के थ्रू वो टेंड कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें इवेलुएट कर सकते हैं. Now, in the summarization of the OSCE and OSCE, the main feature of the OSCE OSCE is that both the process and the product are tested, giving the importance to individual competency. Okay, generally क्यों किया गया है? Because I told you in a previous time when we are evaluating a usual evaluation process, that time the one evaluator can observe the whole the person. It is quite typical, and it will not means it's not allow the evaluator to closely observe the individual competency because of lack of time. Okay, so OSCE, through the OSCE and OSCE, it is very easy. We have to observe the individual competency, and on the basis of their competency we have to evaluate the person. Okay, the examination cover a broad range of clinical skill, much wider than a conventional examination. So examiner क्या करता है? The examination cover a broad range of clinical skill. ठीक है, clinical skill means because in that we also we conduct the clinical examination by different methods. Okay, for example, we are organized the 5 station or the 7 station. Each station is different from another station because both the stations are not similar to evaluate the same competency of the student. Okay, like one station में अपने health assessment किया है, नेक्स्ट स्टेशन में आपको इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट करने के लिए लिखा है, थर्ड स्टेशन में आपको कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं और इमीडिएट डिसीजन मेकिंग आपकी एबिलिटी देखी गई है. यानी कि जितने भी कॉम्पिटेंसी लेवल आपके क्लिनिकल स्किल्स हैं वो सारे क्या करती हैं? ऑब्जर्व की जाती हैं OSCE and OSCE के थ्रू. द स्कोरिंग इज ऑब्जेक्टिव सिंस द स्टैंडर्ड ऑफ द कॉम्पिटेंसी आप preset and the agree checklist are used for the scoring, where the question are asked in response the station, they are always objective. तो जितने भी स्टेशन में क्वेश्चनाइज किए जाते हैं वो सारे क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनाइज होते हैं, ठीक है. एंड आपका इवैल्यूएशन किससे किया जाता है? चेकलिस्ट के थ्रू किया जाता है. और चेकलिस्ट क्या होती है? प्री प्लान होती है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई इंस्ट्रूमेंट दिया गया, आपको 5 इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, 5 इंस्ट्रूमेंट का आपको नेम लिखना है, उसका इंडिकेशन यूजर्स लिखना है और उसकी लेबलिंग करनी है, ठीक है. तो आप जो चेकलिस्ट होती है हमारी उसमें लिखा हुआ होता है लेबलिंग के कितने मार्क हैं, ठीक है, और आपके यूजर्स का कितना मार्क है, ठीक है, या फिर आपके इंस्ट्रक्शन के क्या मार्क्स हैं, ठीक है. मीन्स हर एक चीज का क्राइटेरिया आपकी चेकलिस्ट में पहले से प्री प्लान होता है कि स्टूडेंट अगर इतना आंसर करता है तो उसे ये मार्क्स मिलेगा. अंडरस्टूड. तो उसमें कोई भी बायसनेस नहीं होती है स्टूडेंट के साथ, एक फेयरली हम इवैल्यूएशंस करते हैं. Advantage of the OSCE and OSCE is all the component of the clinical exam are assessed. इससे क्या होता है? क्लिनिकल एग्जाम के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, चाहे हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, इंस्ट्रूमेंट करते हैं या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, कोई प्रोसीजर देख रहे हैं, ठीक है, बाइवा, ऑल दिस थिंग विल कवर्ड बाय द OSCE. ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जो क्या है पहले से ही क्या प्री प्लान्ड है, ठीक है. देन ऑल्सो सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन. Experienced examiner can control the complexity of the examination, ठीक है. जो एक्सपीरियंस एग्जामिनर होता है, अगर कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी आती है एग्जामिनेशन में, जैसे स्टूडेंट डोंट अंडरस्टूड हाउ टू राइट और हाउ टू कंप्लीट दिस टास्क, सो the whatever the complexity occur in the examination time, the experienced examiner can be easily control these kind of problems. Okay, can be used with a large number of the student. हम इसे large number of the student में भी use कर सकते हैं. reproducible. Okay, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब एक बार हमने कर दिया, हम इसे दोबारा से क्या कर सकते हैं?
प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोबारा से हम सेम वही सिनेरियो में स्टूडेंट को इवेलुएट कर सकते हैं. एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, फीडबैक टू द स्टूडेंट करेज द स्टूडेंट सेल्फ इवेलुएशन एंड सेल्फ लर्निंग. एंड एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन जो फीडबैक होता है स्टूडेंट का, एनकरेज द स्टूडेंट सेल्फ इवेलुएशन. सेल्फ इवेलुएशन के लिए स्टूडेंट को एनकरेज किया जाता है, ठीक है, एंड सेल्फ लर्निंग के लिए, बिकॉज स्टूडेंट आल्सो कैन इजीली इवेलुएट हाउ दे आर कंप्लीटिंग देयर टास्क. ओके, now advantages in another, the component of the clinical skill and the standard of the competency are the pre-planned, so the objective and the reliability is higher. ओके, ऑब्जेक्टिविटी रिलायबिलिटी हायर क्यों है? बिकॉज हर चीज पहले से प्लान की गई है. सडन ऑनसेट आपको नहीं बताया गया है कि आपके 5 स्टेशन है, या फिर आपको सडनली आपको एक स्टूडेंट को कुछ और टास्क दिया गया, अनदर स्टूडेंट को कोई और टास्क दिया गया. नहीं, पहले से हर चीज प्लान है कि इतने स्टेशन बनेंगे, उसमें कौन कौन से क्राइटेरिया रखे जाएंगे, और उसकी चेकलिस्ट इवैल्यूएटर पहले से प्लान करके रखता है, ठीक है. तो ऑन ऑफ सडन कुछ भी चीजें नहीं होती हैं. तो इससे क्या होता है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी बनी रहती है. दैट मीन द टूल इज रिलायबल. ओके, द वेरिएबल ऑफ द एग्जामिनर एंड द पेशेंट आर टू अ लार्ज एक्सटेंट रिमूव. ओके, तो जो भी वेरिएबल्स ऑफ द एग्जामिनर एंड द पेशेंट आर द लार्ज एक्सटेंट टू बी रिमूव. जो भी मतलब वेरिएबल्स होती है एग्जामिनर की और पेशेंट की, हम वो largely उसे we will do the large extent and will remove. Okay, the fun activity within the department or the college which promote the teamwork. Okay, इससे क्या होता है कि बिकॉज ईच स्टेशन में हर एक इवेलुएटर्स की नीड होती है, तो इट्स अ काइंड ऑफ आल्सो फन एक्टिविटी. ओके, एंड विच कैन प्रमोट द टीम वर्क, because if we are creating a 5 station, then we need the 5 evaluators. So it is very important that each evaluator will coordinate with the another evaluators. Okay, student full involvement inspire learning. इससे क्या होता है, student fully हम inspire कर सकते हैं toward the learning. Understood the advantages? Yes, ma'am. Now the disadvantages. Knowledge and the skill are tested in the compartments, but interrelated compartment, sequential, organized, follow the nursing process can solve this problem. ठीक है, knowledge and skill are tested in the compartment. ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, जो नॉलेज और स्किल होती है एज अ कंपार्टमेंट हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं. बट इंटर रिलेटेड कंपार्टमेंट सीक्वेंसली ऑर्गेनाइज, बट जो इंटर रिलेटेड कंपार्टमेंट सीक्वेंसली हम ऑर्गेनाइज करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं कि आपको 5 फर्स्ट स्टेशन में आपको कुछ डायग्नोसिस लिखे हुए हैं, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटिक मेलाइटस है, हाइपरटेंशन है, जब कोई भी ऐसा प्रोसीजर लिखा हुआ है ऑस्पी पे, जहाँ पी फॉर प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में आपका हो रहा है ऑस्पी, अब वहाँ आपको 5 डायग्नोसिस लिखे हैं, एंड आउट ऑफ दीज 5 डायग्नोसिस आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा है कि आउट ऑफ दीज 5 डायग्नोसिस यू हैव टू राइट अबाउट द 3 डायग्नोसिस. ठीक है, तो आपको 3 डायग्नोसिस के बारे में लिखना है, उसके साइन एंड सिम्टम्स लिखना है कि इन डायग्नोसिस में जनरली साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, या फिर आपको 5 अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स दिए गए हैं और उन साइन एंड सिम्टम के बेसिस में आपको 3 डायग्नोसिस फॉर्मुलेट करना है. ठीक है, तो वो क्या है, आपकी नॉलेज है. ठीक है, कि आपने वो कैसे फाइंड आउट किया कि ये साइन एंड सिम्टम इस पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, नाउ द स्किल कैसे टेस्ट करते हैं हम, आपको कोई प्रोसीजर दिया गया है, देन यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रोसीजर. ठीक है, या फिर आपको कुछ जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी लेबोरेटरी में सिमुलेशन प्रेजेंट है, आपको कैनलाइजेशन के लिए दिया गया है. ठीक है, तो वो क्या है, आपकी स्किल प्रैक्टिसिंग है. तो आपकी नॉलेज और स्किल क्या होती है, इंटर रिलेटेड कंपार्टमेंट सीक्वेंसली ऑर्गेनाइज्ड होती है. फॉलो द नर्सिंग प्रोसेस कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक है, और अगर हम नर्सिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या असेसमेंट करना, तो पहला स्टेशन असेसमेंट का बना दो. दूसरा क्या होता है हमारा डायग्नोसिस करना, तो दूसरा स्टेशन डायग्नोसिस का बना दो, हेड टू टू एग्जामिनेशन फर्स्ट वाले स्टेशन में करके नेक्स्ट का डायग्नोसिस बना दो. थर्ड में क्या आपके गोल हैं, आप ठीक है, फोर्थ में आपका क्या प्लानिंग करनी है,
देन इम्प्लीमेंटेशन करना है। इम्प्लीमेंटेशन में आपको लिखना है कि इम्प्लीमेंटेशन आपको पर्टिकुलर प्रोसीजर रखा जाएगा, वो आपको परफॉर्म करना है। देन इवेलुएटर, तो ऐसे भी आप नर्सिंग प्रोसेस उसमें फॉलो कर सकते हो, जिससे कि क्या कर सकते हैं हम किसी भी इंडिविजुअल की नॉलेज और स्किल को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि डिसएडवांटेज लाइक ऑस्टी की अगर हम नर्सिंग केयर प्रोसेस फॉलो करते हैं देन ओनली वी विल शॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम टू असेस द नॉलेज एंड स्किल। और अगर हम नॉलेज और नर्सिंग प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं देन व्हाट विल बी हैपन, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ नॉलेज या फिर स्किल एक ही चीज को हम क्या करते हैं इवेलुएट कर सकते हैं। द OSCE may be the difficult for the both examiner and the patient. Sometimes OSCE क्या होता है both examiner और patient के लिए typical होता है, because some patient क्या करते हैं coordinate नहीं करते हैं। ठीक है, patient are not willing to perform any kind of procedure, मतलब patient में कोई procedure हो उसके लिए वो willing नहीं होता है। okay? An examiner also having a facing a problem by because each station having a one examiner, they have to continuously observe the student. Okay, more time in a setting up मीन्स एक सेटअप करने के लिए किसी पर्टिकुलर आपको एक लार्ज रूम चाहिए, उस रूम में आपको ऑर्गेनाइज करना है स्टेशन। ठीक है, आपको रूल्स जो भी हैं वो मीन्स उसे प्रिंट करके और आपको वॉल में स्टिक करना है, सो दैट कि ईच स्टूडेंट शुड राइट दीज इंस्ट्रक्शन दे हैव टू फॉलो। okay, you also means pre-plan all the objective, the checklist. okay, तो इन सारी चीजों को it will take more time to set up the OSCE and OSPI. स्पेशल ट्रेनिंग नीड फॉर टीचर, अब टीचर के लिए क्या होता है स्पेशल ट्रेनिंग नीड की जरूरत होती है। ऐसे जैसे हमने एडवांटेजेस में पढ़ा कि जो एक्सपर्ट एग्जामिनर होता है अगर कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी आती है तो वो इजीली शॉर्ट आउट करता है, बट अगर वो एक्सपर्ट नहीं है, वो फर्स्ट टाइम ऑस्पी करवाया, तो ही और शी फेसिंग सो मेनी इशू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑस्की एंड ऑस्पी। ओके, नाउ द शॉर्टेज ऑफ द एक्सपीरियंस एग्जामिनर, अगर एग्जामिनर नहीं है तो क्या होगा, बहुत अच्छे से हम ऑस्की और ऑस्पी परफॉर्म नहीं कर सकते। Now the key to success is OSCE is the careful planning. This is very important कि आपने अपने OSCE को carefully, objectively on the basis of the competency basis and the knowledge for the knowledge and a skill. ठीक है, उसके बेसिस में आपने OSCE and OSCE प्रिपेयर किया तो डेफिनेटली आपकी जो OSCE है वो सक्सेसफुल होगी। This is for you all. Tell me and I forget. Show me and I may remember. Involve me, I will understand. And choking up my sense with the infinite knowledge. So understood the OSCE? Yes, ma'am. Understood Yes, the ma'am.